ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے توشخانہ فوجداری کیس کا ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی۔ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دیا، ریمارکس دیے۔ پر امید ہے ہائی کورٹ چیئرمین پی ٹی آئی کی دیگر درخواستوں کے ساتھ یہ کیس بھی سنے گی۔ حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ دوران سماعت جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا درخواستیں ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، حکم ٹرائل کورٹ کو کیسے کرتے ہیں۔ سماعت سے قبل چیئرمین پی ٹی آئی کی موجودگی میں کمرہ عدالت کے باہر شور شرابہ ہوا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی عدالتی احترام برقرار رکھنے کی ہدایت، کہا باہر شور شرابہ ختم کرائیں ورنہ ہم کیس نہیں سنیں گے۔ بینچ کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چلا گیا۔ عدالتی ڈیکورم بحال ہونے پر جج واپس آئے اور کیس کی سماعت کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ماتحت عدلیہ سے متعلق ایڈوائزری اختیار سماعت ہائی کورٹس کے پاس ہے، ہم تو صرف ہائی کورٹ سے درخواست کر سکتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا توشخانہ کا ٹرائل تو حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، میرے خیال میں ہمیں اس وقت اس معاملے میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ حکم نامے کے مطابق درخواست گزار کے وکیل اور ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے اتفاق کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے دونوں درخواستوں کو سن کر فیصلہ کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی مقدمات منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے سیشن جج طاہر عباس کو عبوری ضمانت کی درخواست پر حتمی فیصلے سے روک دیا۔ عدالت نے کہا جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ آئے سیشن عدالت حتمی فیصلہ نہ دے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست پر چیف جسٹس نے کہا سیکیورٹی فراہمی کا اختیار چیف کمشنر اسلام آباد کا ہے، ہم چیف کمشنر کو آپ کی درخواست سن کر فیصلہ کرنے کا کہہ سکتے ہیں۔ اسلام آباد کی عدالت نے عدم حاضری پر شہباز گل کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس کی سماعت 31 جولائی تک ملتوی کر دی۔ شہباز گل کی کیس کی سماعت روکنے اور آن لائن حاضری کی درخواست سے مسترد کر دی۔ جج نے کہا اشتہاری ہونے کے بعد عدالت میں حاضری کے بغیر اشتہار منسوخ نہیں ہو سکتا۔ شہباز گل کو ہائی کورٹ نے 4 ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی، وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں مجوزہ ترمیم کا مسودہ سامنے آ گیا۔ نگراں حکومت کو اضافی اختیارات دینے کی تجویز بھی شامل ہے۔ حتمی بل آج منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہی چال چل دی۔ الیکشن ایکٹ کا مسودہ کمیٹی میں جعلی طریقے سے منظور کرا دیا۔ جے یو آئی ایف کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں انکشاف۔ جو ہے نا وہ میری ڈسکشن میں نہیں آئی تھی، میں یہ تو ایویڈنس آ گیا کہ میں جو ہے مسلسل اس کمیٹی میں ڈیلی آ کے بیٹھتا تھا۔ میں اتنے دن سے کوئٹہ نہیں گیا ہوں، میں اپنی والدہ کو نہیں دیکھا۔ جب میں کسی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ریگولر بیٹھا رہا اور میں چاہتا تھا کہ میں کہیں نہ کہیں پہ شریک رہوں یا کم از کم جو ہے نا اس کو واچ کرتا رہوں، تو پھر آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے طے کر کے کریے۔ یہ نہیں کہ بیچ میں جو ہے نا وہ کاغذوں کے درمیان میں ایک اور کاغذ ڈال کے اس پہ سائن کروا لیے جائے۔ گورنمنٹ کی الائی ہیں، ہم گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سسٹم کو آگے لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں، مگر دستور کی کاسٹ پہ نہیں۔ آئینی ترامیم سے خدشہ ہے، نگراں حکومت کے آئینی تصور کی نفی کر دی گئی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کے نام پر ان کی اپنی جماعت کی طرف سے تحفظات سامنے آئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی ان کے اتحادیوں میں نگراں سیٹ اپ، آئندہ انتخابات اور انتخابی اصلاحات پر کوئی یکجہتی دکھائی نہیں دے رہی۔ نگراں حکومت کے اختیارات میں اضافہ کے بغیر ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا نجی ٹی وی کو انٹرویو، کہا نگراں حکومت کے لیے 60 کے بجائے 90 دن ہونے چاہیے۔ مینجمنٹ کرنی پڑے گی آپ کو فسکل سائڈ کے اوپر، مانیٹری سائڈ کے اوپر، آپ کے جو اپنے بجٹری جو کمٹمنٹس کر لیں کہ ہم یہ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ڈے ٹو ڈے لکھا ہوا ہے اس وقت اس میں سیکشن 230 میں، وہ تو نہیں کر سکتے پھر نہ ان کے جو حالات ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہو ریگارڈلیس کہ کون کس کو یہ ذمہ داری ملتی ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے۔ پالیسی میٹرز ہیں، آپ کے جو اس وقت پرائیویٹائزیشن پروسیس ہے، آپ کے جو ایس او ایز ہیں، یہ بھی بائی دی آئی ایم ایف کا ایک حصہ ہے یہ کہ آپ ایس او ایز کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ نے 3-4 مہینے کے لیے بالکل اس کو فریز کر دینا ہے تو آئی تھنک اٹس ناٹ فیئر ٹو دی کنٹری۔ موسٹلی ان کا خیال ہے کہ 60 دن کی بجائے 90 دن، اس کی ایک آئینی اویلیبل چوائس ہے کہ آپ کیا کریں اور اس کو ہم فالو کریں گے۔
निगरान हुकूमत के इख्तियार में इजाफे से मुतालिक बिल की हिमायत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हमें इस बिल का इल्म है, PDM सरबराह को पता होना चाहिए पार्लियामेंट में कैसा बिल पेश किया गया। अभी बिल आए और बड़ी इसके ऊपर डिस्कशन हुई है और कमेटी में भी आए, उसमें पार्टी के मेंबरान भी थे। पीपल्स पार्टी को सवाल से एतमाद में लिया गया और पीपल्स पार्टी का सपोर्ट भी कर रही है, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमेटी है, तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाता है। मुझे नहीं पता रजा रब्बानी साहब ऑन बोर्ड है, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, चीज का इल्म होना चाहिए। रजा रब्बानी साहब को मीडिया से बात करने से पहले पार्टी के साथ बात करनी चाहिए। कामरान साहब, उनको भी पता होना चाहिए क्योंकि वो तो बड़े PDM के सरबराह हैं वो लोग, और PDM के सरबराह को पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में जो है हुकूमत क्या चीज लेके रही। खबर आपको देंगे, पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान इलेक्टेबल्स शामिल करने का मुकाबला बलूचिस्तान तक पहुंच गया है। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग की नजरें भी बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स पर मरकूज हैं। इस पर बात करेंगे हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट से। नहीं बताएगा इस बारे में? जी बिल्कुल, कुछ अर्सा पहले जरदारी साहब ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किए थे बलूचिस्तान में, जब एक जमात के कुछ इलेक्टेबल्स और अरकान असम्बली को उन्होंने पीपल्स पार्टी में शामिल किया था। तो उससे ये तासुर मिल रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में अक्सरियत ले लेगी, और जो इनके दरमियान मुस्लिम लीग नून और PP के दरमियान दुबई में सेटिंग हुई है कि जिसकी भी एक सीट भी ज्यादा होगी वजीर आजम का उम्मीदवार उसका होगा और दूसरी जमात सपोर्ट करेगी। अब इसी बलबूते पर इसी वजह से नून लीग जो है उसने भी बलूचिस्तान का रुख कर लिया है और चंद अहम अरकान असम्बली से राब्ते हो गए हैं। उनमें कुछ आज़ाद हैं और कुछ बलूचिस्तान की जो कौम परस्त जमातें हैं उनके अरकान शामिल हैं। उन अरकान ने अभी तक शमूलियत की हामी नहीं भरी, बल्कि कुछ वक्त मांगा है, और शायद वो वक्त जो है जब इलेक्शन अनाउंस होंगे, हुकूमत खत्म होगी, केयर टेकर सेटअप आएगा और फिर ये इलेक्टेबल्स जो हैं ये फैसला करेंगे, क्योंकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के राब्ते तो पहले से ही जारी हैं। तो ये अब जो इलेक्टेबल्स की गेम बलूचिस्तान की है वो अहम है, क्योंकि वहाँ के अरकान जो हैं ये फर्क डाल सकते हैं आइंदा हुकूमत बनाने में। जी शुक्रिया आपका। नहीं अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने नए पैमरा तरमीमी बिल पर रद्दअमल में कहा कि हम बाकायदगी से पाकिस्तान और दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त से मुतालिक खदशात का इजहार करते हैं। एक आज़ाद प्रेस और बाखबर शहरी किसी भी कौम और उसके जमहूरी मुस्तकबिल के लिए अहम है। It's true. We routinely raise our concerns about press freedom to all stakeholders around the world, including officials in Pakistan. A free press and informed citizenry are key for any nation and its democratic future. The Secretary spoke by phone with his counterpart in Pakistan yesterday to continue to reaffirm a productive U.S.-Pakistan partnership. They spoke about a number of issues, including that the United States will continue to engage with Pakistan through technical and development initiatives, through our very robust trade and investment ties. The Secretary also welcomed the IMF's approval of a program to support Pakistan and encouraged continued reforms to promote economic recovery and prosperity in the country. कराची की मली नदी तुगयानी के बाद कुरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम है। जाम सादिक पुल से तुरक चौरंगी तक गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। मनाजिर आपके सामने हैं, तवील कतारें लगी हुई हैं, ट्रैफिक बुरी तरह से मुतासिर है। ये मनाजिर आपके सामने हैं कराची की मली नदी में तुगयानी के बाद कुरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ये बदतरीन ट्रैफिक जैम है। जाम सादिक पुल से बुरुख चौंगी तक गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। अनवर खान हमारे साथ हैं, उनसे ताजा तरीन सूरत-ए-हाल जानेंगे। अनवर, बताएगा क्या सूरत-ए-हाल है इस वक्त? यानी कि बाइस कुरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन पस मंजर के अंदर आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद के अंदर मोटरसाइकिल सवार हैं जो कि यहाँ से गुजर रहे हैं। दोनों जानिब ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है और पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। ताहम उसके बावजूद जो शहरी होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो मुतबादिल रास्ते अख्तियार करते हुए इस जगह पर पहुँच जाते हैं। तो यानी वाला पानी है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ताहम मुतादिद लोगों की देखें मोटरसाइकिलें इसके अंदर ख़राब हुई हैं, और अगर इस वक्त इस तुयानी के अंदर हाई टाइड आ जाए तो इस हाई टाइड के नतीजे के अंदर ये इसका बहुत इतना तेज़ होता है कि ये मोटरसाइकिल समेत वहाँ पर गिरने का सबब भी बन सकते हैं इन मोटरसाइकिल सवारों को।
पानी नदी के अंदर गिर रहा है, उस सूरत हाल को देखें, पानी के अंदर कितना हाई टाइड है। ट्रैफिक पुलिस के अहकाम के बावजूद शहरी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि इस सूरत हाल के दौरान वो एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें, ताहम अमलन शहरी ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। जी, पहाड़ी सिलसिलों में होने वाली बारिशों के बाद मलीर के मज़ाफ़ाती इलाकों में नदियां और डैम भर आए हैं। मलीर नदी में वाक़िअ माई नया डैम भरने से दसना छन्नू और दर मोहम्मद गोट समेत इतराफ के गांव ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं, जिसकी वजह से गोट के रिहायशियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शर से, जो इस वक्त माई नयानी डैम पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर नदी के माई न्यानी डैम के मकाम पर। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पहाड़ी सिलसिलों में जो बारिश हुई है मुसलसल, वो नदियाँ नाले जो हैं वो भर आए हैं, देहाती इलाके हैं, गांव हैं, वो ज़ेरे आब आ गए हैं, रास्ते कट गए हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है। पानी बहुत आया और पीछे डैम सारे भर गए हैं, आना जाना सब मुश्किल हो गया, खंबे मंबे गिर गए हैं, हमें लाइट के 2 दिन से मसला आ रहा है, खाने पीने के लिए रास्ते नहीं है, बिल्कुल सब तंग हो रहे हैं। यहाँ के बसने वाले लोगों के लिए मुश्किलात ये है कि जो पानी भरा है, रास्ते कट गए हैं, बिजली नहीं है, बीमारियां भी फैल रही हैं, तो उनके लिए इलाज के लिए कोई सेहत की टीमें भेजी जाएं। पानी जो रहमत फिलहाल है वो रहमत ही रहे। जी, दरिया सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत-ए-हाल है, बारिश से सतह में इजाफा हो रहा है। हाई कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत के तमाम कोऑर्डिनेटर्स की तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया है। मंजूर अहमद से जानेंगे, मंजूर बताएगा इस बारे में। जी खालिद, ये 14 जून को फैसला जो महफूज किया गया था, आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मोहम्मद आमिर राना ने ये तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जो बलूचिस्तान हुकूमत के 2 तर्जुमान हैं, जिनमें एक बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान है जबकि एक वज़ीर आला बलूचिस्तान के तर्जुमान है, इन दोनों की तैनाती को जो है वो गैर कानूनी करार दे दिया गया और इसके साथ साथ जो कोऑर्डिनेटर तैनात किए गए हैं वज़ीर आला की जानिब से, तकरीबन की तादाद 28 बनती है, इन तमाम की तैनाती को भी गैर कानूनी करार दे दिया है। तहरीरी फैसले में हुक्म दिया गया है कि ये कोऑर्डिनेटर जो मराहत इनको मिल रही थी वापस करे, जो गाड़ियां इनको दी गई थी और तर्जुमानों को, वो भी वापस करे और इसकी रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार को पेश करें। इस हवाले से अब्दुल सादिक खिलजी एडवोकेट ने जो है वो दरख्वास्त दायर कर रखी थी, आईनी दरख्वास्त, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि इन कोऑर्डिनेटर्स की तैनाती एक तो कानून के खिलाफ है और इसके साथ साथ ये जो वसाइल है सूबे के उस पर भी बोझ है, क्योंकि इनके तमाम अखराजात इस गरीब सूबे पर जो है ना बोझ बनते हैं, जिस पर मुख्तलिफ समातें हुई और 14 जून को फैसला महफूज किया गया था, जिस पर आज तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस की एहतसाब अदालत में समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 जुलाई तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया, ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे, फिर हाई कोर्ट जाना है। डेप्टी प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर ने कहा, ये हर तारीख में यही कहते हैं, अबूरी जमानत का केस है। अदालत ने करार दिया 31 जुलाई को अबूरी जमानत पर हतमी दलाइल होंगे। इस्लामाबाद में डॉल्फिन फोर्स का क़याम के पहले हफ्ते ही पहला कारनामा सामने आ गया। तफरीह गाहों में शहरियों को हिरासत करने पर फैमिली ने शिकायत कर दी। जुल्कनैन हैदर से जानेंगे। जुल्कनैन, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, एक फैमिली की जानब से शिकायत की गई थी कि जो डॉल्फिन फोर्स के एहलकार हैं वो पब्लिक मकामात पर हरासमेंट करते हैं, तंग करते हैं लोगों को, जिस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 4 जो डॉल्फिन फोर्स के एहलकार हैं उनको मुअत्तल भी कर दिया गया है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना रमना में सरकार की मुद्दत में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है, जुल्कनैन तफसीलन अपडेट कर रहे थे। डॉल्फिन फोर्स के 4 एहलकारों को मुकदमा दर्ज करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है, नौकरी से मुअत्तल भी कर दिया गया है। एहलकारों के खिलाफ मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना रमना में पुलिस ऑर्डर कानून के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है कि मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पर डॉल्फिन एहलकार फैमिलीज को हिरासत करते हैं। अवाम को बिलावजह तंग करने पर एहलकारों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया है। एमकेएम के राना अंसार को 39 अरकान की हिमायत हासिल है। पीटीआई के 9 मुनहरिफ अरकान की अपोजिशन लीडर के लिए राना अंसार की हिमायत। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी संजय। एमकेएम पाकिस्तान की राना अंसार आज सिंध असेंबली में पहली खातून अपोजिशन लीडर बन जाएंगी। अब से कुछ देर के बाद स्पीकर सिंध असेंबली उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। मौजूदा अपोजिशन लीडर हलीमा अदल शेख को 59 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि राना अंसार ने 39 अरकान सिंध असेंबली की हिमायत हासिल करके एक नई दरख्वास्त एमकेएम पाकिस्तान ने
स्पीकर सिंध असम्बली के ऑफिस में जमा करा दी है। इस दरख्वास्त में 20 MKM पाकिस्तान के अराकीन, सिंध असम्बली 10 PTA के अराकीन और 9 जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अराकीन की भी हिमायत हासिल है। तो इस तरह हलीम आदिल शेख अब ऐवान में अपोजिशन अरकान की अक्सरियत खो चुके हैं। सिंध में निगरान सेटअप के मामले पर वजीर आला सिंध और अब राना अंसार यानी MKM के दरमियान मुशावरत होगी, जिसके बाद इस सिंध में निगरान सेटअप आएगा। और अब MKM पाकिस्तान ने यह तारीख रकम की है कि एक खातून को नामजद किया है जो सिंध असम्बली की पहली अपोजिशन लीडर। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। US सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक को रेला का दौरा कराकर पाकिस्तान मुकम्मल हो गया। इलामी के मुताबिक जनरल कुरेला ने पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में मिलिट्री तावन के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज की। इस दौरान इंसदाद दहशतगर्दी, मिलिट्री ट्रॉमा, कॉम्बैट केयर, सिक्योरिटी तावन, डिजास्टर रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों पर गुफ्तगू हुई। जनरल माइकल कोरेला ने पाकिस्तान के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर का भी दौरा किया और कमांडर सेंटकॉम की DG मिलिट्री ट्रेनिंग मेजर जनरल असद नवाज और कमांडर NCDC ब्रिगेडियर सुलेमान खालिद से मुलाकात की। जनरल ने पाकिस्तान आर्मी स्नाइपर स्कूल का भी दौरा किया। मुलाकातों में पाकिस्तान और US सेंटकॉम के इंसदादी दहशतगर्दी की मुश्तरका तरबियत और पाक फौज के ट्रेनिंग मैनेजमेंट प्रोसेस पर भी इन मुलाकातों में तबादला ख्याल किया गया। जनरल ने लाइव सॉल्ट स्नाइपर रेंज का मुशाहिदा और हथियारों का मुआयना भी किया। जनरल माइकल पाक फौज की पेशा रवाना महारत, लगन और सलाहियत से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि US सेंटकॉम हमेशा पाक अमेरिका ताल्लुकात को कदर व मंजिलत की निगाह से देखती है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कराची से आपको खबर देंगे। MP असलम अबड़ो की गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। गाड़ी में MP असलम अबड़ो मौजूद नहीं थे। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अफजल। देखिए, पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि डिफेंस फेज 7 के इलाके में ये वाकया पेश आया है, जहां पर MP असलम अबड़ो की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी है। वीगो गाड़ी में सवार असलम अबड़ो के भाई, उनके 2 बेटे और एक मुलाजिम इसमें शदीद जख्मी बताए जाते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि गाड़ी में असलम अबड़ो खुद मौजूद नहीं थे। चारों जो जख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जाए वक़्वा पर 25 से 30 जो है मुख्तलिफ हथियारों के खोल मिले हैं, जिनको पुलिस ने तहवील में ले लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि असलम अबड़ो पहले PTI में थे और अब पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। इनकी जो फैमिली है वो अपने गांव जा रहे थे और इस दौरान ये वाक़या पेश आया है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इनकी शनाख्त अकरम अबड़ो, शेरियार अबड़ो, अब्दुल्ला अबड़ो और इरशाद कंवर के नामों से हुई है और इनकी जो गाड़ी है उसको मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो मुख्तलिफ जानिब से जो है मुल्जिमान ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में ये 4 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुल्क भर के उलमा और मुशाइख ने लंडी कोतल खैबर के इलाके में अली मस्जिद को शहीद करने की मजम्मत करते हुए कहा है कि मसाजिद और बेगुनाह इंसानों के कत्ल करने वाले किसी भी सूरत इस्लाम और मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं हैं। पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मुशाइख और दीगर अकाबरीन पैगाम पाकिस्तान, ज़ाब्ते अखलाक और फतवे में वाज़ेह कर चुके हैं। पाकिस्तान में खुदकुश हमले हराम हैं और बेगुनाह इंसानियत को कत्ल करने वालों का इस्लाम और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के सलामती के इदारों, पुलिस और अवाम को निशाना बनाने वाले मुजरिमीन हैं और इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कौम, उलमा और मुशाइख, अफवाज पाकिस्तान और सलामती के इदारों के साथ हैं। किसी भी ग्रोह या जमात या फर्द को हक हासिल नहीं कि वो असलहा उठाए और मुल्क में दहशतगर्दी करे। इसके लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।